Welcome to the lecture series of Mathematical Modeling of Manufacturing Processes with subject code KME 073. I am Dr. Suman Gotwal, working as an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering at Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. So, in our last lecture, we started the non-traditional machining process or the unconventional machining processes, and we discussed about the what is the unconventional machining process, how we can classify these processes on the basis of different types of energies, and what is the needs and benefit of these processes. And then we discussed one of the important non-traditional machining process, that is the electrode discharge machining. In today's lecture, we are going to discuss about the working mechanism of the other non-traditional machining processes. So, lecture is divided into two parts, part 1 and part 2, because there are many processes. So, we cannot cover all the processes in one lecture. So, these will be the outline of today's lecture. First, we are going to discuss about the AJM, working principle of AJM. AJM is the abrasive jet machining process. And then we will discuss the process parameters, means what are the parameters which can affect the quality and the finishing of the machining operation. Then we are going to discuss about the USM, that is the ultrasonic machining. So, we will discuss the working mechanism and the process parameters of the USM. And after that, we are going to discuss about the advantages and disadvantages of the AJM and USM process. So, we will discuss both the processes in detail in the coming slides. So, first we will discuss about the abrasive jet machining. So, abrasive jet machining में क्या है? In abrasive jet machining, basically the material removal will occur on account of impact of high velocity air or gas stream of abrasive particles on the workpiece surface. ओके तो ये जो है यहाँ पर AJM जो है उसमें हम मैकेनिकल टाइप की एनर्जी जो है वो यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे इरोजन के थ्रू जो है मटेरियल रिमूव होगा. अब जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, हेयर वी विल यूज़ द अब्रेसिव पार्टिकल्स, एंड यहाँ पे जो मीडियम होगा वो हम हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स को यूज़ कर रहे हैं. हाई वेलोसिटी एयर जो है वो यूज़ होगी या गैस स्ट्रीम जो है वो यूज़ होगी, एंड दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ द जेट, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वर्क पीस मटीरियल पे, दैट विल इरोड द मटीरियल फ्रॉम द वर्क पीस. सो दिस विल बी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ abrasive jet machining. अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में we can see here, this is the nozzle through which the mixture of the gas which in which we are using the air and the abrasive particle are coming out. ओके नोज़ल के थ्रू ये पार्टिकल्स आ रहे हैं और इनकी जो है बहुत हाई स्पीड से ये पार्टिकल आते हैं कि ये जेट की फॉर्म में जो है वर्क पीस से स्ट्राइक करें. तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो 150 टू 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पार्टिकल्स जो है वो वर्क पीस पे स्ट्राइक करते हैं. द नोज़ल टिप, ये जो है दिस इज़ दी नोज़ल टिप. नोज़ल टिप जो है वो टंगस्टन कार्बाइड की बनी हुई होती है. ठीक है, जनरली हम टंगस्टन कार्बाइड की नोज़ल टिप को यूज़ करते हैं. दिस इज़ आवर वर्क पीस फ्रॉम विच वी वांट टू रिमूव द मटेरियल. अब यहाँ पे देखिए द नोजल टिप जो डिस्टेंस है और द वर्क पीस का नोजल टिप सरफेस एंड द वर्क पीस के सरफेस का जो गैप है, दैट इज़ द नोजल टिप डिस्टेंस और SOD, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस. ओके, और ये जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है वो 0.3 टू 20 mm तक की रखेंगे. एंड दिस इज़ दी विड्थ जो होगी वो 0.18 टू 0.8 mm तक की ये जो है विड्थ होगी. ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. दिस इट इज़ ऑल्सो नोन बाय सेवरल अदर नेम, जैसे कि इस प्रोसेस को हम अब्रेसिव माइक्रो ब्लास्टिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं, पेंसिल ब्लास्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं और माइक्रो अब्रेसिव ब्लास्टिंग भी बोलते हैं. ठीक है, दीज आर दी अदर नेम ऑफ दिस अब्रेसिव जेट मशीनिंग. दिस इज़ एन इफेक्टिव मशीनिंग मेथड फॉर हार्ड एंड ब्रेटल मटेरियल. तो हार्ड और ब्रेटल मटेरियल की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग ऑपरेशंस को प्रेफरेंस देते हैं. तो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल का अगर केस होगा तो हम अब्रेसिव जेट मशीनिंग को यूज़
कर सकते हैं. सो इट विल बी ए वेरी इफेक्टिव मशीनिंग मेथड. सच एज द ग्लास, सिलिकॉन, टंगस्टन और सिरेमिक. मीन्स अगर ये वाले मटेरियल के पे हमें मशीनिंग करनी है तो हम इनको abrasive jet machining को यूज़ कर सकते हैं. टिपिकली द प्रोसेस इज यूज फॉर कटिंग द इंटीग्रेट शेप्स और फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एजेस. कोई स्पेसिफिक एज की फॉर्मेशन होनी है या कोई कॉम्प्लेक्स शेप है, इंटीग्रेट शेप जो कि डिफ़िकल्ट है मशीन करनी कन्वेंशनल मशीनिंग ऑपरेशंस की हेल्प से. सो उस केस में हम अब्रेसिव जेट मशीनिंग को यूज़ कर सकते हैं. द प्रोसेस इज इनहेरेंटली फ्री फ्रॉम द चैटर. यहाँ पे जो है ये वाले इश्यूज नहीं होंगे, जैसे कि चैटरिंग का कोई इश्यू नहीं होगा यहाँ पर. वाइब्रेशंस जो है वो भी यहाँ पर नहीं होंगी. एंड द हीट प्रॉब्लम जो है वो हीट प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे टूल जो है वो नेवर टच द सबस्ट्रेट. यहाँ पे क्योंकि जो हमारा टूल है, जो हमारी नोज़ल है, वो कभी भी वर्क पीस को टच नहीं करेगी. तो यहाँ पर वो हीट अफेक्टेड जोन जो होगा या हीट के कारण जो इश्यूज होते हैं, रेजिडुअल स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाते हैं, वो सब प्रॉब्लम जो है यहाँ पे नहीं होंगी. सो दिस विल बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस. अगर हम वर्किंग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वर्किंग मैकेनिज्म क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे हम अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं. कौन से अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं? जिनकी की साइज आपका वेरी कर सकता है 10 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर. ठीक है, यहाँ पे जो अब्रेसिव पार्टिकल का साइज है वो 10 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर के बीच का हो सकता है. अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वेदर वी वांट टू मशीन दी मटेरियल और वी वांट द फिनिशिंग ऑपरेशन ओनली. ओके, so it will depend on the type of operations to be carried out on the workpiece. ओके, तो यहाँ पे अब्रेसिव पार्टिकल्स को यूज़ करेंगे और वो जो है गैस के साथ यूज़ होगा, एयर के साथ मिक्स करेंगे उन पार्टिकल्स को एंड दैट विल कम आउट फ्रॉम द नोजल. ओके, एट वेरी हाई स्पीड. तो स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो 150 to 300 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगी. नाउ अगर साइज़ की बात करें तो स्मॉलर अब्रेसिव पार्टिकल जो है वो यूज़ करेंगे अगर हमें फिनिशिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, और लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स जो है वो यूज़ करेंगे अगर हमें कटिंग ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है. तो क्लियर. नाउ द अब्रेसिव पार्टिकल, these abrasive particles which are mixed with the air, these will be directed towards the workpiece through with the help of nozzle. ये जो नोजल प्रोवाइड है इसकी हेल्प से वो वर्कपीस की तरफ उनको मूव करेंगे. ओके, एंड जहाँ पे भी हमें कटिंग ऑपरेशन, जैसे कटिंग ऑपरेशन हमें यहाँ परफॉर्म करना है तो दिस विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वर्कपीस विद द हेल्प ऑफ द नोजल. ओके, एंड यहाँ पे जो है हम एक गैप को मेंटेन करेंगे कि इसके बीच में टूल टिप और वर्कपीस सरफेस के बीच में जो गैप है उसको हम मेंटेन करेंगे. इसके बाद जैसे ही अब्रेसिव पार्टिकल इम्पैक्ट करेंगे, जो जैसे ही अब्रेसिव पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक करेंगे वर्कपीस सरफेस पे, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है स्मॉल फ्रैक्चर विल टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे वर्कपीस जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगा क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से जो है ये स्ट्राइक करेंगे इसको, तो मटेरियल इरोड होना स्टार्ट हो जाएगा और फ्रैक्चर हो जाएगा सरफेस पे. एंड द मटेरियल इरोजन विल अकर बाय द चिपिंग एक्शन. अब जो है जो पार्टिकल है, पार्टिकल इम्पैक्ट जो है उसके कारण जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है. ओके, इट विल कॉज द फ्रैक्चर एंड वियर ऑल्सो, सो विच इज़ कैरिड अवे बाय द गैस अलोंग विद द अब्रेसिव पार्टिकल्स. अब यहाँ पे जो है फ्रैक्चर हो गया चिपिंग एक्शन के कारण. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इट विल बी कैरिड अवे विद द हेल्प ऑफ द गैसेस. अब गैसेस इतनी हाई वेलोसिटी से आ रही है तो ये जो है जो भी आपका मटेरियल फ्रैक्चर होता जा रहा है उसको यहाँ से साइड कर देंगी. ओके, एंड द अब्रेसिव पार्टिकल्स एक बारी जो आपने यूज़ कर लिया उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब अब्रेसिव पार्टिकल ने यहाँ पे स्ट्राइक किया तो जो उसके शार्प पॉइंटर्स थे कैसे हो गए, ब्लंट हो गए और राउंड हो गए. तो आपके अब्रेसिव पार्टिकल्स जो है उनकी शेप भी चेंज हो जाती है, और दूसरा जो है उसके अंदर जो वर्क पीस का मटेरियल वो भी क्लोग्ड हो जाता है अब्रेसिव पार्टिकल्स के अंदर जब वो स्ट्राइक करते हैं. तो इस वजह से हम इन अब्रेसिव पार्टिकल को फिर से यूज़ नहीं करते. तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा. तो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द abrasive jet machining. Now we come to the process parameters. So process parameters basically क्या होते हैं,
प्रोसेस पैरामीटर्स होंगे। अगर हम देखें इसमें यहाँ पे हमने इशिकावा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके प्रोसेस पैरामीटर्स क्या है जो कि वर्कपीस की फिनिशिंग या मशीनिंग जो है प्रोसेस को या क्वालिटी जो है उसको अफेक्ट करेंगे, दैट आर द प्रोसेस पैरामीटर्स। सो यहाँ पे ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो वर्कपीस मटेरियल है, नोजल है, गैस है और अब्रेसिव्स है। दीज आर द 4 process parameters of the AJM process which will affect the performance of this AJM process. So in case of the abrasive types, अगर हम अब्रेसिव के टाइप्स की बात करें तो अब्रेसिव के टाइप में उसके अब्रेसिव कौन से टाइप का हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और उसका साइज़ क्या है या मास फ्लो रेट क्या है, ये सब जो है अब्रेसिव पार्टिकल के अंदर हम कंसीडर करेंगे। अगर गैस की बात की जाए तो गैस की कंपोजिशन क्या है, कितने प्रेशर पे हम गैस को यूज़ कर रहे हैं और क्या वेलोसिटी से गैस जो है वो आ रही है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं वो हम गैस के पैरामीटर्स में देखेंगे। अगर वर्क पीस मटेरियल की बात करें तो वर्क पीस मटेरियल का टाइप क्या है, कौन से टाइप का वर्क मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और नोज़ल का अगर देखें तो नोज़ल में जो है उसकी ज्योमेट्री क्या है, मटेरियल क्या है नोज़ल का, नोज़ल बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, फीड रेट क्या है या स्टैंड ऑफ डिस्टेंस क्या है। तो दीज आर द प्रोसेस पैरामीटर्स विच कैन अफेक्ट द क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द AJM। जैसे कि अब्रेसिव की अगर बात करें तो अब्रेसिव का साइज़ कौन सा ले रहे हैं, टाइप कौन सा ले रहे हैं हम, ठीक है, ये सब जो है हम देखते हैं कि अब्रेसिव जो है स्मॉल साइज़ के लेंगे अगर हमें फिनिशिंग करना है, बड़े साइज़ के लेंगे अगर हमें कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो, और हम जो है अगर कटिंग हम यूज़ कर रहे हैं तो कटिंग के लिए मोस्टली जो है हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन कार्बाइड के अब्रेसिव्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर क्लीनिंग या एचिंग या पॉलिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम जो है मोस्टली ग्लास बीड्स या फिर डोलोमाइट्स को यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर गैस की बात करें तो गैस जो है हमारी नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए गैस। ओके, तो कॉमनली जो गैस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ दी नाइट्रोजन गैस, या फिर एयर यूज़ कर सकते हैं या फिर कार्बन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वेलोसिटी की बात करें अब्रेसिव मिक्सचर की तो द वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव मिक्सचर वो बेसिकली जो है वो डिपेंड करेगी कि नोज़ल का डिज़ाइन क्या है, नोज़ल का साइज़ क्या है, या नोज़ल में प्रेशर जो है या अब्रेसिव पार्टिकल साइज़ है, तो इन सब पे जो है वेलोसिटी ऑफ गैस जो है वो डिपेंड करती है। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस की अगर हम बात करें, स्टैंड ऑफ, यहाँ पे हम देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ऑन एक्यूरेसी ऑफ द कट। तो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इफ़ यू वांट द एक्यूरेसी इन आर मटेरियल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस 0.75 mm है तो हमें एक एक्यूरेसी मिल रही है हमारे कट के अंदर। लेकिन जैसे जैसे जो है ये डिस्टेंस, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर है ये आपके कर्व में चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे जो है डेप्थ कम हो रही है लेकिन जो विड्थ है वो कट की इंक्रीज़ होती जा रही है, और यहाँ आके जो है वो कट आपका इस तरह से हो गया। सो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ वी कम टू दी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। सो अगर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की बात की जाए तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो है इसके अंदर भी अब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। सो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज़ ए सब्ट्रैक्टिव मशीनिंग प्रोसेस। इसमें भी मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब्ट्रैक्टिव हो गई नेचर के अंदर, एंड दैट विल रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पार्ट थ्रू द हाई फ्रिक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस ऑफ ए टूल against the material surface in the presence of the fine abrasive particles. So यहाँ पे भी abrasive particles को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम एक टूल जो है वो यूज़ करते हैं, और ये टूल जो है वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से जो है ऑसिलेट करता है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, ठीक है। लो हाई फ्रिक्वेंसी होती है लेकिन लो एम्पलीट्यूड होता है, और ये वाइब्रेट करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है ये टूल, और इसको कॉन्टिन्यूसली जो है वो फीड किया जाता है टुवर्ड्स दी वर्क पीस। सो हेयर वी कैन सी दैट देयर इज़ ए लोडिंग सिस्टम टू फीड द this towards the workpiece surface. This is the cone. This portion is known as the cone, and this is the horn, and this is the tool. This one is the tool. यहाँ पे जो है वहाँ पे in case of the AJM we were using the abrasive particles with gas, but here we are using the abrasive slurry. तो abrasive slurry यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए
ये पंप है, पंप की हेल्प से अब्रेसिव को, स्लरी को वर्क पीस और टूल का जो गैप है इसके बीच में प्रोवाइड किया जाता है एज ए मीडियम टू ट्रांसफर द एनर्जी, एंड आफ्टर इट हैज़ वर्कड देन इट विल collect here, and from here it will again go to the pump after the filtration process. Okay. So this is also the same process. ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक लोड होगी और वाइब्रेशंस होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 to 40 kHz के इक्वल होती है. इट इज़ यूज टू इरोड द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द फाइन होल्स और द कैविटीज इन द हार्ड और ब्रिटल वर्क पीस. सो यहाँ पे भी हार्ड और ब्रिटल वर्क पीस ही यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे जो है मटेरियल को ये इरोड कर सकता है फाइन होल्स की टर्म में, या फिर कैविटीज़ को भी क्रिएट कर देता है ये थ्रू द यूज़ ऑफ द फॉर्म टूल. टूल जो है, टूल की जो शेप होगी दैट विल बी द शेप ऑफ द फाइनल वर्क पीस ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे भी रेप्लिका हमें मिलेगा वर्क पीस में, जो टूल की शेप होगी वैसा ही. थ्रू द यूज ऑफ द फॉर्म टूल, वाइब्रेशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विद द यूज ऑफ द सुटेबल अब्रेसिव स्लरी मिक्स. सो अब्रेसिव स्लरी मिक्स को एज ए मीडिया यहाँ पर यूज़ करना है. तो अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होगा, बेसिकली ये जो USM प्रोसेस है, यहाँ पे एक टूल को यूज़ कर रहे हैं हम, जो कि क्या कर रहे हैं, टूल को यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से ये ऑसिलेट करता है, लो एम्पलीट्यूड होता है. ओके, एंड यहाँ पे जो है कटिंग टूल ऑसिलेट करेगा, फ्रिक्वेंसी जो होगी वो 20 to 40 kHz तक होगी. ओके, एंड द शेप ऑफ द टूल, ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि जो शेप जो होगी वो टूल की, वो कॉरस्पॉन्डिंग टू द शेप ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क पीस की. हमें जो है वर्क पीस में क्या शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमारे टूल की शेप होगी. यहाँ पे अब्रेसिव जो ग्रेन्स हैं, दीज आर ड्रिवन बाय द हाई स्पीड रेसिप्रोकेशन अक्रॉस दी स्मॉल गैप्स. ये बहुत ही हाई स्पीड से आती हैं और ये जो है इस गैप के बीच में जो है अब्रेसिव स्लरी को पास किया जाता है. ठीक है, और यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो यूज़ किया जाता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं लोडिंग सिस्टम है, तो यूनिफॉर्म फोर्स है उसको यूज़ किया जाता है टूल को फीड करने के लिए. एंड जो ये आपकी अब्रेसिव स्लरी जो पास कर रही है और टूल जो है वाइब्रेट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा अब्रेसिव पार्टिकल्स को टुवर्ड्स द वर्क पीस, एंड यहाँ पे जो है ये हाई इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे ऑन दी वर्क पीस जब वो स्ट्राइक करेंगे वर्क पीस पे. तो ये जो इम्पैक्ट होगा अब्रेसिव का वो होगा एनर्जी सोर्स, दैट विल बी द एनर्जी सोर्स विच विल बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस. एंड यहाँ पे जो अब्रेसिव के थ्रू जो है आपका वर्क पीस जो मटेरियल है जो रिमूव हो रहा है, दैट विल बी कैरिड अवे विद द अब्रेसिव स्लरी. अब्रेसिव स्लरी जो है उसको वो साइड कर देगी, और ग्रेजुअली जो है यहाँ पे टूल का वियर भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब्रेसिव पार्टिकल से भी स्ट्राइक कर, तो यहाँ पे वियर जो है वो टूल का होगा बिकॉज ऑफ द अब्रेसिव एक्शंस. सो यहाँ पे जो है टूल हमारा टफ मटेरियल का होना चाहिए. क्लियर, टफ मटेरियल के टूल को हम यहाँ यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग. सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द मटेरियल रिमूवल. कि मटेरियल रिमूवल जो होगा वो कौन कौन से रीज़न से हो सकता है. यहाँ पे जो है मटेरियल रिमूवल है, मैकेनिकल अब्रेशन हो सकता है, इम्पैक्ट के थ्रू मटेरियल रिमूवल हो सकता है, इरोजन हो सकता है, या केमिकल एक्शंस हो सकते हैं. सो मैकेनिकल अब्रेशन की जब बात करेंगे तो मैकेनिकल अब्रेशन अकर्स ड्यू टू द हैमरिंग इफेक्ट ऑफ द अब्रेसिव पार्टिकल ऑन द वर्क पीस थ्रू द टूल. बिकॉज टूल इज़ वाइब्रेटिंग, टूल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है और अब्रेसिव पार्टिकल जो स्लरी है वो इसके कॉन्टेक्ट में है, मीन्स जो गैप जो है वो उसके बीच में अब्रेसिव स्लरी जो है वो पास कर रही है. अब जो है ये जो हैमरिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि वो वर्क पीस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हैमरिंग इफेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं वर्क पीस पे, तो इस वजह से भी मटेरियल जो है वो रिमूव हो सकता है. इम्पैक्ट मीन्स जो फ्रीली मूविंग जो पार्टिकल्स हैं उसका भी अपना एक इम्पैक्ट होगा, वो भी सर्टेन वेलोसिटी से जो है वर्क पीस पे स्ट्राइक करेंगे, एंड दैट विल रिजल्ट इन द माइक्रो चिपिंग. चिप्स, बहुत छोटी छोटी स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे चिप्स की फॉर्म में. इरोजन के थ्रू भी जो है मटेरियल रिमूव हो सकता है. तो इरोजन में क्या होगा, ड्यू टू द कैविटेशन इफेक्ट, मटेरियल रिमूव होगा तो कैविटीज फॉर्म होंगी. सो ड्यू टू द कैविटेशन इफेक्ट ऑफ द अब्रेसिव स्लरी, इरोजन ऑफ द वर्क पीस विल occur. Now
we come to the chemical. So due to the fluid that is employed with the abrasives, that chemical effect can come into consideration. तो वो भी chances हो सकते हैं कि जो fluid हम use कर रहे हैं वो भी react करे और उस reactions के through भी material remove हो जाए. So in USM process there are no physical, chemical or thermal changes. वर्कपीस की में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे इन केस ऑफ द USM. कोई फिजिकल चेंज नहीं होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा, थर्मल चेंजेस नहीं होंगे. इवन माइक्रो स्ट्रक्चर्स ये रिलीव करता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस भी नहीं आएंगे वर्कपीस के अंदर. ओके कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगे. यहाँ पे जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी वो भी जो है बहुत कम होंगी क्योंकि हमारा जो है हीटिंग इफेक्ट है वो कम है. द कटिंग फोर्सेस बीइंग लो, द वर्क पीसेस अनस्ट्रेस. कोई स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं होंगे, कोई रेजिडुअल स्ट्रेसेस नहीं होगा, तो वर्क मटेरियल जो है वो अनस्ट्रेस होगा, अनडिस्टॉर्टेड होगा और फ्री फ्रॉम द हीट इफेक्ट होगा. Okay, so this is the USM. Now we come to the process parameters of USM. So अगर process parameters की बात करें तो process parameters में क्या आ जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस को USM की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे. सो हेयर वी हैव ऑल्सो यूज्ड द इशिकावा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. सो वी कैन सी हेयर देयर आर 4 मेजर फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस. फर्स्ट वन इज द abrasive slurry machine. Okay, we can use the abrasive slurry or the type of machine that we are using, the tool and the workpiece. So if we talk about the abrasive slurry, so in case of the abrasive slurry, basically in this what type of characteristic we will look, we will see the type and the size of the abrasive that we are using or the shape of abrasive that we are using. Okay, then we will see the types of the fluid. Okay, so these will be the parameters that we will go. Okay, then we have the tool material properties जो है और टूल की ज्योमेट्री जो है दैट विल ऑल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ द USM प्रोसेस. तो शेप जो है वो टूल की शेप क्या है, सॉलिड टाइप का टूल यूज़ कर रहे हैं या होलो टूल को यूज़ कर रहे हैं, या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है उस मटेरियल की क्या है जिससे कि हमारा टूल बना हुआ है, या दूसरे पैरामीटर्स जो है वो भी अफेक्ट कर सकते हैं जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी शेप हो गई, मटेरियल की प्रॉपर्टीज सरफेस हो गया. नेक्स्ट वी कम टू द वर्कपीस प्रॉपर्टीज़. सो वर्कपीस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कि हार्डनेस जो है वो वर्कपीस की कितनी, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है तो दैट विल आल्सो अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ USM. या फ्रैक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, या फिर वर्क हार्डनिंग टेंडेंसी जो है, या फटीग प्रॉपर्टीज़ जो है वर्क मटेरियल की. सो दीज आर द फैक्टर्स विच विल also affect. Next we come to the mechanical properties. So mechanical properties में अगर हम देखें तो मैकेनिकल नहीं मशीन प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ये वो पैरामीटर्स है जो कि हम मशीन पे सेट करते हैं. ठीक है, एंड दिस विल इंक्लूड द फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है टूल का कितना होगा एम्पलीट्यूड, या टूल किस फ्रीक्वेंसी से जो है वो उसकी टूल की फ्रीक्वेंसी क्या है या एम्पलीट्यूड क्या है, कितना वाइब्रेशंस जो हैं उसके टूल के अंदर है, या फिर स्टैटिक लोड जो है वो क्या अप्लाई कर रहे हैं टू फीड द टूल टुवर्ड्स दी वर्कपीस, या वर्कपीस रोटेशन जो है या टूल हेड रोटेशन है. तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि एक प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं. नाउ वी कम टू दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दी AGM. सो AGM की एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो AGM में क्या एडवांटेजेस हो जाएंगी. AGM प्रोसेस इज़ ए हाईली फ्लेक्सिबल प्रोसेस, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल प्रोसेस है जिसके अंदर की अब्रेसिव मीडिया जो है वो यूज़ किया जाता है बाय फ्लेक्सिबल होल्स विच कैन रीच आउट ऑफ सम डिफ़िकल्ट एरियाज एंड इंटरनल रीजन्स. सो यहाँ पे जो है नोज़ल यूज़ कर रहे हैं तो नोज़ल जो है वो कहीं पे भी इंटीग्रेट जो एरियाज़ हैं या जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है जहाँ तक रीच करना, तो उन एरियाज़ में भी ये मशीनिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती है. सो इट इज़ ए वेरी फ्लेक्सिबल वन. द AGM प्रोसेस क्रिएट्स द लोकलाइज्ड फोर्सेस. एक पर्टिकुलर एरिया में ये फोर्सेस को लोकलाइज कर सकती है एंड जनरेट कर सकती है लेटर, और इट विल जनरेट द लेसर हीट देन द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस. तो अगर कन्वेंशन के बीच में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो हीट के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत कम होंगी. देयर इज़ नो डैमेज टू द वर्क पीस सरफेस.
वर्कपीस सरफेस का कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है इसमें हमारा टूल और वर्कपीस के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट होगी, तो जो भी इश्यूज जो होंगे वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। द मटेरियल रिमूवल रेट इज़ लो, सो दिस विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस एक्चुअली, कि यहाँ पे मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो लो होता है। अदर डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो है हार्ड और ब्रिटल मटेरियल तक ही लिमिटेड हैं ये प्रोसेसेस, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल को तो हम कन्वेंशनल मशीनिंग की हेल्प से भी इजीली मशीन कर सकते हैं, तो दीज आर लिमिटेड टू द हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल ओनली। एंड द वियर रेट ऑफ नोजल इज़ वेरी हाई, क्योंकि अब्रेसिव पार्टिकल्स उसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे वियर रेट बहुत ज़्यादा होगा नोजल का। द प्रोसेस रिजल्ट्स इन द पुअर मशीनिंग एक्यूरेसी, यहाँ पे अगर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस को हमने मेंटेन नहीं किया तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पुअर जो है मशीनिंग एक्यूरेसी हमें नहीं मिलेगी। अगर हम एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ यूएसएम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की बात करें तो बिकॉज देयर इज ऑल्सो नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस, इट ड्यू टू द स्लरी, क्योंकि एक अब्रेसिव स्लरी हम यूज़ कर रहे हैं एज ए मीडियम, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल मेक इट ए वेट कटिंग प्रोसेस। वेट कटिंग प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस प्रोड्यूस होंगे वो फ्री होंगे किससे, स्ट्रेसेस और डैमेजेस से। कोई डैमेज नहीं होगा वर्क पीस में, कोई स्ट्रेसेस नहीं होंगे। द प्रोसेस इज फ्री फ्रॉम द बर्स एंड द डिस्टॉर्शन ऑल्सो। This process is suitable for any material irrespective of the electrical conductivity. So कई प्रोसेस में क्या होता है कि ये मटेरियल जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होना चाहिए, बट यहाँ पे जो है ऐसा केस नहीं है, हम इसको किसी भी मटेरियल के लिए इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। द प्रोसेस इज़ वेरी मच सुटेबल फॉर द मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल जो है उसके लिए बेस्ट प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ अ गुड सरफेस फिनिश और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, तो यहाँ पे जो सरफेस फिनिश है वो एज़ कम्पेयर टू AJM वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सॉफ्ट मटेरियल जो जैसे कि लेड हो गया या प्लास्टिक्स हो गया, उसको मशीनिंग जो है इसके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी होती है, तो उसको हम कन्वेंशनल के लिए यूज़ करेंगे। द टूल वियर रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टूल जो है हमारा किसके कांटेक्ट में, अब्रेसिव्स के कांटेक्ट में रहता है। द एरिया ऑफ मशीनिंग एंड हायर डेप्थ आर कंस्ट्रेंट इन दी USM, यहाँ पे जो एरिया ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन है वो भी एक लिमिटेशन होगा, और जो डेप्थ होगी वो भी एक लिमिटेशंस रहेगी। एज द USM प्रोसेस कंटिन्यूज द लेटरल वियर ऑफ द टूल इंक्रीजेज, जितना हम लॉन्ग टर्म में या जितनी ज़्यादा जो है USM प्रोसेस को करेंगे उतने ही ज़्यादा जो है टूल का वियर ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा, विच विल लीड टू द होल टेपर्ड, तो टेपर टाइप का जो होल है वो क्रिएट हो जाएगा। Okay, these are the references. So this is all from my side for the AJM and USM process, and in the subsequent lectures we will discuss about the other non-traditional processes. So till then, thank you so much.